Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 12 present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So as you all know that we are at the end point of our second unit of the class 12 physics, which is your electricity. So electricity के बिल्कुल end point पे हो चुके हैं, and if I revise the previous lecture, so in the previous lecture we get to know about the potentiometer. So what is potentiometer? You have studied, and if I recall within some time, that it is an electrical device which is used to measure the unknown EMF, but without drawing the current through the circuit. Circuit से current consume किए बिना. And it works on the principle that voltage drop is directly proportional to what? Voltage drop is directly proportional to the balancing length or the length of the wire. When the constant current passes through the uniform cross section, यानी जब I और area constant होगा तो voltage drop length के directly proportional होगा. Why the drop? You all know that, आप लोगों ने previous lectures से go through में that we want that galvanometer should show the null condition. अब उन चीजों को पॉइंट में ध्यान में रखते हुए सो देयर आर सम लॉजिकल पॉइंट्स जो मैं आपके सामने पहले एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूं दैट इफ वी हैव सम पॉइंट्स सो देयर आर द यू कैन से द की पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर. सो की पॉइंट्स टू बी रिमेंबर जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है, so that there is no chance of error during the reading or during the procedure of potentiometer, ताकि कोई error ना हो. So what are the key points? ये मैंने आपसे last lecture में भी discuss किए थे, but हम लोगों ने just only discussion किया but लिखा नहीं था. So let's talk about the key points. So the first important key point is that main supply should be greater as comparison to what? As comparison to unknown supply. So आपका जो मेन सप्लाई है वो अननोन सप्लाई से ज्यादा होना चाहिए. इस चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. Because when the main supply is being greater, तभी unknown supply जीरो पे पहुंचेगा firstly. If your unknown supply ज्यादा होगा, mean the supply in the secondary circuit is more as comparison to primary supply. So your galvanometer never reach to the null condition और आपको कभी भी balancing length नहीं मिलेगा. So this is the first key point जो हमें ध्यान में रखना है. Second key point that both the sources means your main supply and the unknown supply should be connected with the same terminal. तो ये बात भी हमें याद रखना है that the terminal of the unknown supply and the terminal of the main supply जो हम लोगों ने A point पे रखा था, please recall that diagram. At that A point both should be at the same terminal. दोनों same terminal पे होने चाहिए. Because when the two sources are connected with same terminal like positive or negative, then only the voltage drop, तभी आपका net EMF E1 minus E2 आता है. So we have to drop the voltage, so that's why they should be connected with same terminal. अगर आप नहीं करते हैं so there is chances of error, यानी error ही होगा, फिर आपसे गलती ही हो रहा है. Okay, the third point or third important thing जो हमें याद रखना है that the length of potentiometer wire should be sufficient. ये भी हमने आपसे बात किया था. Let's suppose is that your balancing length or the length at which you are getting the null point, यानी वो point जहां पे आप लोगों को galvanometer no deflection condition देगा. So I am talking about on the basis of previous lecture that let's suppose आपकी balancing length आ रहा है 400 centimeter, means 400 centimeter पे आपको null condition मिलेगा. But आपने जो potentiometer wire use किया from the A point to the B point, आप केवल पोटेंशियोमीटर वायर मींस
द लेंथ ऑफ ए बी वायर आप केवल 200 सेंटीमीटर यूज कर रहे हो. सो यू आर यूजिंग ओनली 200 सेंटीमीटर वायर, बट आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और फाइनली जो वोल्टेज जीरो मिलेगा, यानी सेकेंडरी सर्किट में जो नल पॉइंट मिलेगा या नल कंडीशन या गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दैट वुड बी एट 400 सेंटीमीटर. मान लीजिए 400 पे जाके मिल रहा है, बट आप लोग लेंथ कितना लेके बैठे हो? जस्ट ओनली 200. मींस लेंथ तो आपका छोटा पड़ गया. So in that case, your potentiometer wire should be of sufficient length. So these are the three important points जो हमें ध्यान में रखने हैं. Because if we do not care about these 3 points, अगर हमने इन 3 points का care नहीं किया, so we can have the error. यानी हमें गैल्वेनोमीटर कभी भी null condition नहीं दिखा के देगा. And with that point or with this thing, we have one question जो हमसे बोर्ड में पूछा जाता है. What is that question? So question is, what are the conditions? What are the conditions in potentiometer wire? Sorry, in potentiometer, so that galvanometer shows only one-sided deflection. I think you are getting what is the question. ये क्वेश्चन बोर्ड में और लॉजिकली बहुत बार पूछा जाता है. And what is that question? That what are the conditions in the potentiometer? Means in potentiometer क्या-क्या conditions हैं so that the galvanometer shows only one side deflection. यानी galvanometer आपको केवल एक ही तरफ deflection दिखा रहा है. So you all know that the zero of the galvanometer is always in the middle. हम बोल रहे हैं कि वो बस एक ही तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कभी भी दूसरी तरफ जाने का कोशिश नहीं कर रहा. दूसरी तरफ जाने का मतलब है वो जीरो पे नहीं आ रहा है. He want to say that. इसका मतलब वो एक साइड में डिफ्लेक्शन है. It means it never come to the zero. And what is zero? जीरो पे आएगा, इसका मतलब नल कंडीशन. यानी सीधा सा क्वेश्चन ये है कि वो क्या कंडीशंस हैं और वो कौन से चांसेस हैं in which the galvanometer does not show any deflection. यानी जिसमें गैल्वेनोमीटर कभी भी नल कंडीशन पे अवेलेबल ही ना हो, यानी आपको कभी भी रीडिंग ही ना मिले, यानी बैलेंसिंग लेंथ ना मिले. क्या क्या गलती हो सकती है हम लोगों से? सो दीज आर द मिस्टेक जो हम लोग कर सकते हैं. शायद हम लोगों ने मेन सप्लाई को अननोन सप्लाई से लेस ले लिया हो, तो ये भी एक गलती है क्योंकि इससे फिर बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगा. नंबर 2, क्या पता हम लोगों ने दोनों सोर्सेज को अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड कर लिया हो, पॉजिटिव विद द नेगेटिव और नेगेटिव विद द पॉजिटिव. इन दैट केस नेट ईएमएफ इज E1 प्लस E2, यानी आपकी वोल्टेज प्लस होता हुआ जाएगा, कभी नल कंडीशन नहीं मिलेगा. और लास्ट चांसेस, क्या पता हम लोगों ने जिस पोटेंशियोमीटर वायर को यूज किया है दैट वायर लेंथ इज इनसफिशिएंट. एक्चुअल में क्या पता उसकी बैलेंसिंग लेंथ 400 सेंटीमीटर पे जाके मिल रही थी और हम लोग केवल 200 सेंटीमीटर लेके बैठे हैं. Because you all know that the length of the potentiometer wire can vary from 1 meter to 10 meter. So these are the key points जो remember, और इसी से related ये question बन सकता है. So I think आप इसका आंसर खुद कर सकते हैं. So this answer for this question lies within the 3 points and you have to mention out. Okay? So please key points को remember रखिए जो हमें ध्यान में रखने और ये चीज आपको याद रखनी है. Okay? So I hope you will get that. Now, since we discuss about the potentiometer, हम लोगों ने potentiometer को समझा. We discuss about the working principle, we discuss about the diagram, construction and the working, कि वो काम कैसे करता है. But there is one more thing जो potentiometer को more interesting बनाती है, and that thing is this potentiometer or this device is just not only to find out the unknown EMF. ये केवल unknown EMF मेजर करने के लिए नहीं है, इससे हम कुछ और चीजें भी पता लगा सकते हैं. Means this device has some more applications. So in this lecture we will discuss about the applications of the potentiometer. So our topic for next topic in a potentiometer is applications. And the first application that I want to discuss is, the first application is compare the EMF.
comparing the EMF of the two cells. So we want to compare them. Compare word means the ratio. So let us have the diagram how we can compare the EMF of two unknown cells of unknown EMF by using the potentiometer wire. कैसे कर सकते हैं? So please check this out. This is our point A. I am again redrawing the diagram. Diagram तो वही बनेगा बेटा. Again, it is our main supply. Key K, variable resistance rheostat. From the A we are going to take our wire A. Then here you all know that these are the copper strip. क्यों use करते हैं? You all know the answer. Okay, and we finally reach down to the point P. So this is our potentiometer. Which circuit? Primary circuit. I am again saying this is our primary circuit, which contain the main supply, key, rheostat, and the potentiometer wire of total length of AB. Okay. Now you all know that if we want to find out, अगर हम लोग ये find out करना चाहते हैं, so we have our primary circuit with main supply, key, rheostat, and the same potentiometer wire. And at the A point, what we connect? We connect our secondary circuit. Secondary circuit contains an unknown EMF. Let's suppose this EMF is E1 with its key named as K1 and along with a galvanometer capital G and the, you all know that, jockey. Means till now the diagram is would be exactly same जो हमारे पास था. हमारे पास एक unknown EMF है, उसका की है, galvanometer है. Since check this out, both are connected with the same terminal. इसका मतलब voltage क्या होने वाला है? Drop करने वाला है. So let us give some supplement aspect. Means इसमें कुछ addition means unknown या part लिखना शुरू कर देते हैं. This is key, this is our rheostat. Okay, labeling done. Okay, but the point is that here we are not going to only find out the unknown EMF E1. हमें यहाँ पे केवल E1 नहीं निकालना है. What we have to do? We have to compare the EMF. Comparison करना है. And you all know that basic, छोटा सा basic सा चीज है. That comparison would be only possible if we have two things. So let's suppose we have another cell of unknown EMF E2. It's also have its own key K2. And it is again connected with the same galvanometer and the same jockey J. Got it? So this is the diagram for the first application. So hope if you understood or if you have gone through the first lecture of the potentiometer, means potentiometer का part 1 अगर आपने को अच्छे से देखा है previous lecture, if you understand that point, अगर आपने उनके logics और उसमें कोई ज़्यादा assignment भी नहीं था, कोई numerical नहीं था, but if you understand that point, definitely this lecture would be very much easy for you. So we have two cells with the two unknown keys. So what we have the main primary circuit with the potentiometer wire, but in the secondary circuit is where हमारे पास दो cell है और दोनों की अपनी key है. Okay, so I hope you clear with the diagram. Let's start with the comparison or you can say the working. चलिए कैसे काम करने वाला है? So what we are going to do initially means firstly, initially the key K1 is closed and key K2 is kept open. Please इस बात पे ध्यान रखेंगे. What we are going to do? We are going to do the key K1 as a close और K2 को open करेंगे. तो K1 को close करना है, K2 को open. Okay, ये तो close जाएगी because ये तो हमारा main supply है ना. So the key K1 is being closed, but K2 is kept open. Thus इससे क्या होगा? Thus unknown EMF. Thus unknown EMF E1 would be in the circuit and E2 is not the part of the circuit. Means write the language in the way that you are clearly understanding the point. Language हमेशा उस तरीके से लिखना है जिससे आप आसानी से समझें. तो what we are going to do?
पहले की K1 को क्लोज करते हैं और K2 को ओपन रखते हैं, और व्हेन द K1 इज क्लोज, अगर K1 क्लोज होगा तो सेकेंडरी सर्किट में E1 EMF काम में आएगा, E2 अभी है ही नहीं। ओके, तो पहले E1 को स्टडी करते हैं। सो now jockey is slided and balancing length L1 is obtained। सो क्या हुआ यहां पे, हम लोगों ने जॉकी को स्लाइड करना शुरू किया। सो वी गेट्स अगेन स्टार्ट स्लाइडिंग द जॉकी, और कल वाला ही वर्किंग है। जैसे जैसे जॉकी को स्लाइड करते जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप होता जाएगा, किसका, E1 का, और इसका भी। और ये E1 सिंस आप जानते हैं मेन सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन द अननोन, सो ये ग्रेटर है, और वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू स्लाइड टिल द हमें नल कंडीशन नहीं मिल जाता। एंड लेट्स सपोज हमें नल कंडीशन कहां पे मिला, L1 पे। So we got the null condition at L1. So thus क्या मिला हमें, thus E1 is equal to KL1. So the EMF of first cell is equal to K into L1. What is the K? You all know that, where K stands for the potential gradient, और जो कि क्या होता है, it is equal to voltage drop across AB wire divided by the length of AB wire। मीन्स आपका टोटल वायर के पास वोल्टेज कितना है डिवाइडेड बाय वायर की टोटल लेंथ कितनी है। मीन्स इट गिव्स द आइडिया दैट हाउ मच वोल्टेज इज गोइंग टू ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो L1 लेंथ में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट ये तो आप जानते हैं जितनी वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस ड्रॉप होगी उतनी ही वोल्टेज अननोन ईएमएफ की होगी। मतलब जितना हमारे पास अननोन ईएमएफ होगा उतनी तो हम वोल्टेज गिरा सकते हैं। अगर आपका अननोन ईएमएफ 2 वोल्ट है, वो बताया था ना, दो गैंग लड़ाई हो रही है, तो अगर इसके पास 2 कैंडिडेट है तो इसके दो कैंडिडेट को मार सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं ओके इस ग्रुप के 4 कैंडिडेट मर गए, तो इसका मतलब सामने वाले के पास कितने रहे होंगे, 4 ही तो रहे होंगे, तभी तो उसने मारा। और वही मैंने आपसे कहा था कोई मूवी का स्टाइल और सीन नहीं है कि एक कैंडिडेट 4 को या 10 को मार रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। सो द अननोन ईएमएफ E1 is equal to KL1. Got it? And this is our equation number 2. Now we are going to study in a second case, and now K2 is closed and K1 is kept open। तो आप क्या करने वाले हैं, K2 को क्लोज करेंगे और K1 को ओपन कर देंगे। Now the K1 is open and K2 is being closed, means K2 पे आप लोगों ने की को प्लग इन कर दिया है। So now इस बार EMF कौन सा EMF सर्किट में है, so thus EMF E2, thus which EMF, EMF E2 is in circuit and it get null condition, it get what, null condition at L2। तो मान लीजिए उसे अपना नल कंडीशन मान लेते हैं, उसने भी अपने आप को स्लाइड किया एंड लेट्स सपोज उसको अपना नल कंडीशन कहां पे मिला, L2 पे मिला। तो फर्स्ट सेल जब सर्किट में था तो EMF का नल कंडीशन L1 पे मिला। When the second circuit or second cell was in the circuit, जब अगली बार काम किया तो L2 पे मिला। तो thus what we can say, E2 is equal to KL2, where K is equal to voltage of AB by length of AB। यानी K का वैल्यू is equal to what is the voltage across AB wire। तो AB वायर के पास वोल्टेज कितना जाएगा वो मेन सप्लाई डिसाइड करेगा, एंड द लेंथ ऑफ AB वायर कितना है वो भी। इसका मतलब एक और पॉइंट जो हमें अंडरस्टूड करना है, एंड दैट पॉइंट इज दैट वैल्यू ऑफ K इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पोटेंशियोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है, दैट K वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर गिवन गैल्वेनोमीटर। इस बात को याद
given, sorry, my mistake, for given potentiometer. So कोई भी given potentiometer आपके पास है, let's suppose we have the potentiometer this, तो इस पोटेंशियोमीटर के लिए एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी और वो क्या है, K. K वैल्यू कैन ओनली बी चेंज इफ द पोटेंशियोमीटर इज चेंज. अगर आप पोटेंशियोमीटर चेंज करते हो, कैसे चेंज करें? ओके, चलिए उसकी मेन सप्लाई अलग कर देते हैं, मेन सप्लाई को चेंज कर देते हैं. इफ योर मेन सप्लाई इज चेंज तो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज भी अलग जाएगा. लेट अस चेंज इट्स लेंथ, चलिए इसका लेंथ भी चेंज कर देते हैं. So the point is that the value of K would be only constant if the potentiometer is same. अगर पोटेंशियोमीटर सेम नहीं रहता है, अगर उसके किसी भी पैरामीटर में चेंजेस आता है, लाइक मेन सप्लाई, लाइक उसके रेजिस्टेंस, लाइक मतलब अगर आप प्राइमरी सर्किट में कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी पैरामीटर चेंज करते हैं, तो K की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. यानी हम वो बोल सकते हैं कि हमारा पोटेंशियोमीटर वो नहीं रहा जो पहले था, तो उसके लिए उसके फिजिकल पैरामीटर्स को सेम रखना पड़ेगा. बट जब तक आप पोटेंशियोमीटर को सेम रख रहे हैं, जब तक आपका प्राइमरी सर्किट सेम है, द वैल्यू ऑफ K रिमेन द सेम, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन voltage of AB, means voltage of potentiometer wire divided by length of potentiometer wire. तो जब तक ये दोनों चीजें सेम है तब तक कहानी सेम है. ओके, सेकेंडरी सर्किट में आप कुछ भी बदलिए, वो दूसरा सर्किट हो गया ना जो इसके साथ कनेक्टेड है, उसमें आप EMF को बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करने वाला है. तो सेकेंड EMF is equal to E is equal to KL2. So thus by equation 1 and 2, so what we can go, E1 by E2 is equal to L1 by L2, because the K cancel with the K. And this is the first application, means comparison of EMF. Means by using the potentiometer wire हम दो EMF को compare कर सकते हैं. Means हम उनकी comparison, उनका ratio निकाल सकते हैं, that how they are being related to each other. मीन्स उनका रेशियो क्या है, कौन किसका कितना टाइम से, ये भी पता लगाया जा सकता है बाय फाइंडिंग द रेशियो. सो दिस इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर. सो प्लीज हैव द डायग्राम, प्लीज कंटिन्यू विद द डायग्राम, गो विद द वर्किंग एंड अलोंग विद द फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, नाउ since we have discussed the first application, that is comparison of the EMF, now we are going to do one more application. Means एक तो unknown EMF तो निकालता है, ये कल सीखा था, and means last lecture में सीखा था. And what we learned today in this lecture, we learned firstly that this is very much helpful to compare the EMF. Now the other things जिसमें ये और helpful करता है, and that second point is, what is that? This is internal resistance of cell. This is being also an important application. ये एक और सबसे important application है पोटेंशियोमीटर का, that by using the potentiometer हम किसी भी सेल का internal resistance निकाल सकते हैं भाई. तो देखो ये वैरायटी है पोटेंशियोमीटर में. और अब अगर मैं आपसे पूछूं, if I now ask you what is the advantage of potentiometer over voltmeter, पोटेंशियोमीटर का वोल्टमीटर के ऊपर एडवांटेज क्या है, और if I ask you why the potentiometer is preferred over the voltmeter, चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं थियोरेटिकली, तो वो आंसर आप खुद देंगे. Why does the potentiometer is preferred over वोल्टमीटर? यानी वोल्टमीटर से ज्यादा हम लोग पोटेंशियोमीटर को प्रेफर क्यों करते हैं? या फिर मैं आपसे पूछूं किसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर, एंड व्हाई? सो बेसिकली व्हाट वुड बी द आंसर? अगर मुझे कंपैरिजन और चूज करना है अमंग द पोटेंशियोमीटर एंड द वोल्टमीटर, आई विल गो विद द पोटेंशियोमीटर. एडवांटेजेस चलिए गिनवाते हैं. पहला, which one or which of the electrical device is more accurate? दोनों में से कौन सा है? Potentiometer. Why? Because potentiometer gives the value of EMF or the voltage without consuming the current. Means without drawing the current. यानी जब भी वो unknown EMF की वैल्यू निकालता है तो उसमें से करंट को ड्रॉ नहीं करता.
मींस कंज्यूम नहीं करता। नल कंडीशन जब आती है उसको लेके हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं और फिर अननोन ईएमएफ निकाल सकते हैं। सेकंड, पोटेंशियोमीटर इज जस्ट नॉट ओनली टू फाइंड आउट द अननोन ईएमएफ, इट हैज आल्सो बीन हेल्पफुल टू कंपेयर द ईएमएफ। तो एक काम एक्स्ट्रा और करता है, ये ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है। सेकंड थिंग, इट हैज बीन आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या हम वोल्टमीटर से ये दो अदर काम कर सकते हैं? नहीं, हम लोग वोल्टमीटर से ना तो कंपैरिजन कर सकते और ना ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरनल रेजिस्टेंस तो निकाल ही नहीं सकते। सो द पॉइंट इज दैट उसके एडवांटेज भी है, तो ये एक्यूरेट है और वैरायटी भी इसके पास ज्यादा है। ये दो एडवांटेज हैं। बट अगर हम देखें पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर अब मैं डिसएडवांटेज का बात करूं तो चलो वो भी सुन लीजिए। नंबर वन, पोटेंशियोमीटर इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। देखो यार, कल से डायग्राम शुरू कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे, समझ रहे या ऐसे काम करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, पोटेंशियोमीटर डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ ईएमएफ डायरेक्टली। जैसे वोल्टमीटर है, यू कनेक्ट द वोल्टमीटर इन द सर्किट, उसका निडल आपको दिखा देगा। 10th क्लास में देखा होगा आप लोगों ने, वोल्टमीटर जैसे ही कनेक्ट करेंगे निडल आपको वेरिएशन दिखा देगा। ओके, 10 वोल्ट 20 वोल्ट जितना भी है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया। बट पोटेंशियोमीटर में ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन निडल तो नहीं है कि आपको दिख जाएगा। पोटेंशियोमीटर में हमें गैल्वेनोमीटर में पहले नल कंडीशन देखना है, फिर वो बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वो लेंथ कितना है तो लेंथ मेजर करना पड़ेगा। लेंथ मेजर करने के बाद ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू K इंटू एल। तो हमें पहले उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को कैलकुलेशन करने के बाद ईएमएफ आएगा। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है पोटेंशियोमीटर का कि प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी जाता है, कॉम्प्लिकेटेड जाता है, एंड टू कैलकुलेट द ईएमएफ बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट वोल्टमीटर में कभी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। पॉइंट वन, अगर आप बोलो इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज। सेकंड, पोटेंशियोमीटर बिकम्स मोर कॉस्टली एज कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर के कंपैरिजन में कॉस्टली पड़ जाता है, स्पेस भी ज्यादा लेगा। अगर मैं आपको और बताऊं तो थोड़ा सा वही वाली बात है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली इन फ्यूचर जब हम लैब में मिलेंगे तो हम देखेंगे, तो आई थिंक आपने बोला ना 1 मीटर के वायर, 1 मीटर, तो इतना बड़ा तो होगा आपका पोटेंशियोमीटर। वोल्टमीटर एक बॉक्स साइज में आता है, स्मॉल साइज। तो ये कॉम्पैक्ट है, ये लार्ज इन साइज है, ये चीपर है, ये कॉस्टली है। ओके, ये इजी टू हैंडल है, आप आराम से उसे हैंडल कर सकते हो। मींस वोल्टमीटर जब आप 10th क्लास में भी थे तब आप आराम से वोल्टमीटर को समझ सकते थे, आप उसकी रीडिंग ले सकते थे। बट क्या आप 10th क्लास में पोटेंशियोमीटर को समझ सकते थे? नहीं, अभी भी समझना मुश्किल है, अभी भी प्रैक्टिस शुरू हुई है, अभी तो लेक्चर शुरू हुए हैं उसके, तो अभी भी शायद डाउट्स में जाएंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो होपफुली पोटेंशियोमीटर के अपने एडवांटेज है, एक्यूरेट है, मोर सेंसिटिव है, अच्छी रीडिंग देता है। ओके, ये इसके एडवांटेज, और प्लस वैरायटीज बहुत ज्यादा है। ईएमएफ भी बताएगा, कंपेयर भी करेगा, इंटरनल भी निकालेगा। वोल्टमीटर सीधा सा बात है, कुछ करंट कंज्यूम करके देता है तो एक्यूरेट नहीं देता, तो ये इसके डिसएडवांटेज है, और आप बोल सकते हो वैरायटी नहीं है। बट वोल्टमीटर के भी अपने एक फायदे हैं। ओके, वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट नहीं देता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट चीपर है, सस्ता है भाई, पहली बात तो ये। दूसरा, कॉम्पैक्ट इन साइज है, साइज कॉम्पैक्ट है, छोटा सा बॉक्स है, इजी टू हैंडल है। एक कर सकते हो ना, जैसे आप आराम से उसे हैंडल कर सकते हो भाई, यहां से वहां लेके जा सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम इन दैट। चीपर हो गया, इजी टू हैंडल हो गया, और इजी टू ऑपरेट हो गया। ऑपरेट करना भी बहुत आसान है, वोल्टमीटर को आराम से देख सकते हैं। बट पोटेंशियोमीटर में ऑपरेशन का प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। लार्ज इन साइज है तो कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी आराम से नहीं लेके जा सकते, और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं जो आप लोगों को यहाँ पे सामने आए। बट मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है that why does the potentiometer is prefer over, तो what are the advantage of potentiometer over the voltmeter, वो आप लोग क्वेश्चन का आंसर खुद लिख लेंगे। ओके, so now let's have the second application, and the second application is to find out internal resistance. Let's start with that. So let's suppose we have the first point, means the same, we have our potentiometer wire। चलिए एक बार ड्रॉ कर देता हूं फिर से। पोटेंशियोमीटर तो वही रहने वाला है, तो इसलिए हर बार डायग्राम आपका सेम बन रहा है बेटा। ओके, सो वी हैव द सेम थिंग, वी हैव द वेरिएबल रेजिस्टेंस नेम एज द रियोस्टेट, वी हैव अ बैटरी,
which is being connected. We have the key along with the rheostat. So this is our what? Again, this is our main supply. Okay, this is your key K, this is rheostat, and this is the potentiometer wire. And what we call this circuit? We call this circuit as a primary circuit. Okay, now in the secondary circuit, we have a known EMF E with the key K1. Okay, तो हमारे पास एक अननोन EMF है जिसका की K1 है with the galvanometer and the jockey. Okay, and along with that, what we are going to do? We are going to connect RB with the key K2. What is the meaning of RB? RB stands for resistance box. ये क्या है हमारे पास? Resistance box. So what is the resistance box? I think 2 or 3 days before I got a same doubt from your side that sir we have heard a word about a resistance box. हमने resistance box word सुना, so what is that? So let me clear. Resistance box is like a resistor itself. वो एक resistor ही होता है. तो चलिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ. So it has two terminal, terminal 1, terminal 2, and we connect these two terminal with the battery or the circuit. Now the point is that when we talk about the journal resistor, जब भी हम journal resistor के बारे में बात करते हैं और जब भी आप लैब में उसे देखेंगे तो that journal resistor या तो 1 ohm, 2 ohm, 5 ohm, 10 ohm. So if I want to use 2 ohm तो मुझे 2 ohm को कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट में. Now if I want to use 10 ohm, what I have to do? So what I have to do? I have to remove the 2 ohm. मुझे 2 ohm को remove करना पड़ेगा और फिर 10 ohm को कनेक्ट करना पड़ेगा. चलिए मुझे और लगाना है, मुझे 20 ओम लगाना है, तो फिर 10 ओम को हटाओ फिर 20 ओम लगाओ, यानी बार बार हटाना और लगाना. तो ये एक सिंगल रजिस्टर के साथ होता है. रेजिस्टेंस बॉक्स है क्या? मल्टीपल रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन. इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स लगे रहते हैं. ठीक है, यहां पे सारे रजिस्टर्स हैं यहां पे. लाइक इफ आई गिव द एग्जांपल 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम और 200 ओम. ऐसे ये थाउजेंड्स ओम तक भी जाता है. वो डिपेंड करता है किस लेवल और कितना हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस बॉक्स है. ओके, और यहां पे इसके की लगेज होते हैं. की, ओके, सो द कीज आर बीइंग प्लेस्ड यहां पे. ओके, मतलब एक पिन सा लगा होगा एक तरीके, जैसे वो बॉम्ब में पिन नहीं आता, आपने मूवीज वगैरह में देखा, पिन रिमूव करके फेंक देना, तो ऐसे पिन से लगे होंगे. नाउ आई वांट टू कनेक्ट 5 ohm. मैं 5 ohm को कनेक्ट करना चाहता हूं सर्किट में. सो व्हाट आई विल डू? आई विल टेक द पिन ऑफ द 5 ohm. मैं 5 ohm की पिन निकाल लूंगा. 5 ohm की पिन निकालने का मतलब है ये जो रजिस्टर्स है जिनमें पिन लगा हुआ है, इसका मतलब ये अभी कनेक्टेड नहीं है. यहां पे थोड़ा सा अलग प्रोसेस चलता है जैसे की का है. इट इज की ओपन, and but when you place the pin in between them, what is that represent? Key close. बट रेजिस्टेंस बॉक्स में इसका उल्टा है. रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या है? जब आप उसकी पिन रिमूव कर लेंगे देन इट विल ऑफर दैट मच रेजिस्टेंस. जब आप निकालेंगे तो उतना लगेगा. तो अभी मैंने कौन सा पिन रिमूव किया? 5 ohm. तो सर्किट में कितना आ गया? 5 ohm. लेट्स सपोज आई वांट टू कनेक्ट 10 ohm. बट अगर मैं पुराने तरीके से करता तो पहले 5 ohm कनेक्ट किया वायर से. नाउ आई वांट टू कनेक्ट 10 ohm. तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू रिमूव द 5 ohm एंड देन आई हैव टू कनेक्ट द 10 ohm. तो वो चीज बार बार नहीं करना है, सर्किट को बार बार ज्वाइन करना फिर ब्रेक करना. तो व्हाट वी हैव मेक दिस डिवाइस रेजिस्टेंस बॉक्स. तो 5 ohm लग गया. अब बताइए, अब मैं 10 ohm लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? 5 ohm की पिन को वापस रख दूंगा और 10 ohm की पिन को निकाल लूंगा. तो 5 ohm वापस से की लगाते ही यहां पे डिस्कनेक्ट हो जाता है. यहां पे की से थोड़ा सा अलग सिस्टम है. तो जैसे ही पिन लगा ये डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी पिन हटा दिया वो कनेक्टेड हो गया. ओके, नाउ आई वांट टू कनेक्ट 25 ohm. चलिए मैं 25 ohm कनेक्ट करना चाहता हूं. सो व्हाट आई विल डू? 10 ohm को लगा दूंगा. आई विल रिमूव द 5 ohm एज वेल एज आई रिमूव द 20 ohm. मैं 5 ohm को भी हटा दूंगा और 20 ohm को भी हटा दूंगा. और बेसिकली ऑल दीज रजिस्टर्स आर इन सीरीज. ये सारे रजिस्टर सीरीज में हैं. तो प्लीज ऐसे मत देखना कि ऊपर नीचे है तो पैरेलल में, ऐसा कुछ नहीं है. दे ऑल आर इन सीरीज. तो ऐसे लाइन बना रखी है और सीरीज में नेट रेजिस्टेंस ऐड होता है. तो अगर मुझे 25 ohm करना है तो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू
disconnect the 5 and the 20. So 20 plus 5 it becomes 25. ऐसे मेरी मर्जी है. I want to connect the 1. चलिए मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ 165 ओम. 165 ओम मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं पेयर बना सकता हूँ. 165 100 plus 50 150 10 160 and 5 165. So 100 ohm 150 160 165. This is the resistance box and I hope you got it from the diagram. और जब हम इसे लैब में और जब स्कूल में मिलेंगे we will do or we will see this by practically. Okay, so this is your resistance box जहाँ पे हम अपने हिसाब से resistance लगा सकते हैं. तो resistance box it is like the resistor itself which offers some resistor and let's suppose its resistance is capital R. So what we have in the diagram, we have the same primary circuit, so I will not explain the primary circuit, but in secondary circuit I have some EMF unknown cell with the EMF E और पक्का उसके पास कुछ ना कुछ internal तो होगा ही यार. That every cell offers some internal resistance. We all know that. This cell have its own key K1 with the galvanometer, but along with that we connected a resistance box with the key K2. Okay, so this is the setup to find out the internal resistance. I hope you clear. Now let's start on the working. चलिए इसके working पे काम करना शुरू कर देते हैं. And again we will do this experiment or we will do this application in two steps. Step number 1. Firstly, key K1 is closed and key K2 is open. So what we are going to do? We are going to do the same thing जो हमने first application में किया. K1 को close करेंगे और K2 को open करेंगे. So thus unknown EMF is in the circuit. तो unknown EMF सर्किट में है. इस बार रेजिस्टेंस बॉक्स तो कोई सर्किट में नहीं है because this key is open, तो ये तो है ही नहीं आपके पास. So thus let at L1 the null condition is obtained. तो L1 पे आपके गैल्वेनोमीटर ने null condition दिखाया. मतलब आपने क्या किया? You start sliding the galvanometer, you start sliding the jockey J. आप jockey को remove या slide करते गए since both are connected with the same terminal और आपका voltage drop करता गया. और let's suppose L1 पे जाके आपके galvanometer ने आपको क्या दिखाया? No deflection. So galvanometer show you no deflection at L1. So thus V drop, कितना voltage drop हुआ? It is equal to KL1. But वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा इस बार? वोल्टेज ड्रॉप उतना ही होगा जितना अननोन ईएमएफ जो हम लोगों ने कल यानी प्रीवियस लेक्चर में सीखा था. सो thus unknown EMF E is equal to KL1. Got it? So this would be your unknown EMF. Now we are going to do the second thing. Now the key K1 and K2 both are closed. अब क्या करना है आपको? दोनों कीज को क्लोज कर देना है. ओके, एंड thus रेजिस्टेंस कैपिटल R is in the circuit. अब आपका रेजिस्टेंस कैपिटल R भी सर्किट में आ गया. एंड at L2 null condition is obtained. तो हम लोगों ने फिर से क्या किया इस पर? What we have done? Now the key K1 and K2 both are closed. अब आपका रेजिस्टेंस बॉक्स भी सर्किट में और EMF भी. ओके, इस बार वो सेकंड वाला नहीं करना कि K2 is closed and K1 is open, ऐसा नहीं करना है. इस बार दोनों क्लोज करना है और अब आपका रेजिस्टेंस भी सर्किट में और now you are again sliding. अब आप दोबारा से स्लाइड कर रहे हो and when you are again sliding, let's suppose your balancing length is L2. So at L2 the null condition is obtained. So thus V drop, voltage drop is equal to इस बार क्या बनेगा? KL2. But point is different. यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग हुई कि यहाँ पे voltage कितना drop होगा. In the previous section क्या था एक बार वापस से देखेंगे. EMF E K1
and this was the A point, and let's suppose C point पे जाके at the C point means when your balancing length was L1, आप लोगों को null condition मिली। तो इसका मतलब AC के across this wire voltage drop हुई। कितनी voltage drop हुई? जितना unknown EMF था we mentioned। but इस बार थोड़ा सा कहानी अलग है। what is different in that? and if I draw this again, this was resistance जो कि अभी सर्किट में आ चुका है। this is unknown EMF and this is A point, and let's suppose with the galvanometer आपका null condition मिला आपको C dash पे, this L2 length। तो वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है? पहले इस पॉइंट को समझना। वोल्टेज इज ड्रॉपिंग अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। वोल्टेज हमेशा वायर के अक्रॉस गिर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वायर की स्लाइडिंग करते करते लेंथ बढ़ती जाएगी, वोल्टेज गिरता जाएगा। तो इस बार जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसके अक्रॉस ही गिरा है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। बट इस बार ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना ड्रॉप होगा, कितनी वोल्टेज गिरेगी? क्या ईएमएफ के बराबर? नहीं। क्यों? बात को सुनिए। दैट नाउ द रेजिस्टेंस R इज इन द सर्किट। अब रेजिस्टेंस R सर्किट में आ गया, और अगर रेजिस्टेंस R सर्किट में है, सो दिस टर्मिनल ऑफ द R इज एट A पॉइंट। R का ये वाला टर्मिनल A पर डायरेक्ट है, और R का दूसरा टर्मिनल जो कि गैल्वेनोमीटर से होते हुए C पॉइंट पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब दिस कैपिटल R एंड AC वायर, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड द वायर AC, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में हो गए। कौन से कनेक्शन में हो गए? पैरेलल। बिकॉज पोटेंशियोमीटर वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, डेफिनेटली। वायर है ना, कांस्टेंट टेन और मैंगनीज, and why the constant ten and manganese are preferred? Because they have high resistivity and low temperature coefficient. So its resistivity is high. So it shows that कि ये जो AC dash वायर है, इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो AC dash वायर है ये इस कैपिटल R के साथ कौन से कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन। It is in the parallel connection with it. और अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है तो AC के पास जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुई वो उतनी ही वोल्टेज होनी चाहिए जितनी एक्सटर्नल के पास है, कैपिटल R के पास। और यू नो दैट व्हाट इज द वोल्टेज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रजिस्टर। एक्सटर्नल रजिस्टर के पास की वोल्टेज को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? अगर आपको याद है ये वर्ड, व्हाट वाज दैट वर्ड? टर्मिनल पोटेंशियल। उसे क्या बुलाते हैं हम लोग? टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल V is equal to I into capital R from the cell, अगर आप याद करें तो। So the point is that when this key K2 is close और K1 दोनों close हो गए, तो इस बार इस वायर के अक्रॉस पैरेलल में एक्सटर्नल R आ गया। ये एक्सटर्नल रजिस्टर इसके पैरेलल में आ गया। ओके, गैल्वेनोमीटर केवल डिफ्लेक्शन वाला डिवाइस है, ये कोई सेल या कोई रजिस्टर नहीं है जो आप ये सोचें कि सर ये तो इसके रास्ते के बीच में आ रहा है तो सीरीज पैरेलल नहीं होगा। ये बस केवल एक डिवाइस है जो आपको केवल रीडिंग बताएगा कि करंट है या नहीं है, बस केवल इतना। इसका मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर और AC डैश वायर दोनों आपस में पैरेलल। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस AC डैश उतना ही होगा जितना वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल होगा। AC डैश के पास कितनी वोल्टेज, यानी जो ड्रॉप कर रहा है, तो यानी वोल्टेज ड्रॉप इस बार उतनी ही होगी जितनी वोल्टेज एक्सटर्नल के अक्रॉस होगी, यानी टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो दिस टाइम वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। पर पहली बार वोल्टेज ड्रॉप उतनी थी जितना ईएमएफ था, क्योंकि पहले केस में रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में था ही नहीं, एक्सटर्नल रजिस्टर ही नहीं था, तो जितना ईएमएफ था उतनी वोल्टेज ड्रॉप हो गई। बट इस बार एक्सटर्नल आ गया, तो इस बार वोल्टेज ड्रॉप उतनी होगी जितनी टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला वी गॉट? KL2। Got it? Now, since we all know that we have an internal resistance formula जो हम लोगों ने डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो, फ्रॉम द सेल टॉपिक, स्मॉल r is equal to E by V minus 1 into capital R. Internal resistance is equal to EMF of the cell divided by terminal voltage minus 1 into capital R. हम लोगों ने डिराइव कर रखा है, you can turn your notebook and you can check this out. So now we got the value of E, हमें E का वैल्यू मिल गया और हमें V का वैल्यू मिल गया। So internal resistance is
KL1 divided by KL2 minus 1 into capital R, and K cancel with the K, and what is the internal resistance formula? L1 by L2 minus 1 into capital R. So by using the potentiometer we can also calculate the internal resistance. That internal resistance is equal to L1. L1 क्या है? L1 is the balancing length when the only K1 is closed, K2 was open. यानी L1 वो balancing length है जब secondary circuit में केवल cell circuit में था, resistance box था ही नहीं. What is L2? L2 is the balancing length when resistance box and cell both are in the circuit. तो इस बार दोनों close होने चाहिए. Okay, and what is the capital R? Capital R represents the external resistor, or you can say the resistance of resistance box. And by this manner हम लोग potentiometer से internal resistance भी calculate कर सकते हैं. So I hope you will get the second point, आपको समझ में आ गया होगा. So here we have the two applications of the potentiometer जो हम लोगों ने आज discuss किए. So now what left in the potentiometer or what left in the electricity? So there is one more lecture जो मैं आपके साथ discuss करना चाहूँगा, but that future lecture would be totally based on the numericals. अब हम numericals सीखेंगे potentiometer के, because it is near about I think 45 minutes ही हुए अभी, so we can take I think हम लोग 15-20 मिनट हमारा lecture generally होता है, तो we can increase 15 to 20 minutes, but I do not want to do that. Because I know in this 15 to 20 minutes हम लोग अपने numericals को नहीं कर पाएंगे. So in future we are holding the numericals of the potentiometer for the future lecture, जो हम लोग within 1 or 2 days में आपके साथ connect करेंगे. In that lecture we will do the numericals. So I will categorize the numerical of potentiometer, यानी फिर से category बांट दूंगा potentiometer के numerical की जो generally आते हैं इस type में type wise. So there are 2 to 3 categories of the potentiometer numerical. And we will discuss some more Watt's numerical को भी discuss करेंगे. So our future lecture would be totally numerical based of the electricity. If anyone having any doubt in the past numerical, कोई numerical in the assignment, और अगर कोई भी चीज अगर आपकी doubt में रह गई है, अगर आपको clear नहीं हुआ है, I replied your answer, मैंने आपके WhatsApp में आपका मैसेज का reply किया है, but आप फिर भी नहीं समझ पाए हैं, so please let me know as soon as you have seen this video. जैसे ही आपने इस वीडियो को देखा है प्लीज मुझे वो वापस से बताइए, सर ये मेरे या हमारे न्यूमेरिकल्स हैं जो नहीं हुए हैं, प्लीज गैदर दैट सो दैट आई कैन यूज दोज न्यूमेरिकल इन द वीडियोस, ताकि मैं उन न्यूमेरिकल्स को अपनी वीडियो लेक्चर्स में कनेक्ट करके मैं आपसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकूं और आप अपने डाउट्स को नेक्स्ट लेक्चर में चेकआउट कर सकें. सो एज सून एज यू सीन दिस वीडियो, जैसे ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो रही है, आपको ये मैसेज मिल रहा है, प्लीज अपने वो लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनाइए जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके क्लियर हैं. So, जो मैं आपके WhatsApp पे कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा, और अगर कोई लेंथी पार्ट है जिसमें वी नीड दिस अंडरस्टैंडिंग और लिटिल बिट फेस टू फेस कनेक्शन, आप मेरा फेस देख रहे हो, मैं तो आपका नहीं देख पा रहा हूँ, बट ये जो भी वन साइडेड फेस कनेक्शन है हम लोग इसके थ्रू उस मैसेज या उस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर पाएंगे. ओके, सो टिल देन दिस इज ओनली फ्रॉम दिस लेक्चर, मींस इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर. एंड इफ ऑफिशियली अगर मैं आपसे आज बात करूं, so officially theoretically means topic wise and everything wise our electricity chapter is being completed or unit is complete. So our second unit electricity is complete now. आपका second unit खत्म हो गया है. And if this is finished now, so you all know that same like the electrosets आप लोगों ने बहुत support किया. So students से now I want कि number of students ज़्यादा हो, तो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए थे प्लीज इलेक्ट्रोसैट्स में बाय एनी रीजन आप कुछ भी एक्सक्यूजेस बनाइए, बट आप लोगों ने एक बार आई थिंक मुझे भी एक वीडियो याद आ रही है, आप लोग बहुत मोटिवेटेड है, रजनीश सर ने आपके सामने एक वीडियो रखी थी आई थिंक विद द नेम ऑफ एक्सक्यूजेस, है ना, तो वही बात मैं कहना चाहूंगा. तो सर आपको वहां से मोटिवेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, तो सर की वो बात बहुत अच्छी है और एवरी वीडियो में अच्छी बता रहे हैं, बट उस एक्सक्यूज वाले वर्ड को उठाना चाहूंगा और उस वाली वीडियो का पॉइंट दैट एक्सक्यूजेस आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकते. दैट इज द ट्रू सेट बाय द सर, जो आप सर ने आपको बताया दैट कि एक्सक्यूजेस आपको कुछ नहीं दे पाएंगे. तो अगर आप ये रीजन देते हैं कि मैं नहीं था, अभी भी रिसेंटली बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो अभी कनेक्ट हो रहे हैं,
देर से आ रहे हैं, क्यों सर? मुझे तो लगा स्कूल ओपन होगा ना तब आप पढ़ाएंगे। बेटा दैट इज योर थिंकिंग दैट कि लास्ट 2 मंथ से हम लोग अगर स्टडी कर रहे हो और आप 2 मंथ तक ये सोच रहे हो कि जब स्कूल ओपन होगा देन वी विल स्टडी, प्लीज ये तो बहुत लेट हो गया यार। दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज। एंड इट इज नॉट फॉर दो स्टूडेंट जो लेट आए हैं, जो रेगुलर भी हैं, वो भी अगर अपने लेक्चर को अगर लेट डाउन करते हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग पोटेंशियोमीटर और अभी आप किरचॉफ लॉ के लेक्चर पे हो तो गड़बड़ हुआ। तो दैट इज द पॉइंट जो मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, प्लीज हरी अप। सो इन द नेक्स्ट वीक, सो इट हैज बीन सैटरडे, आज सैटरडे है, आज आपको वीडियो मिल रहा है on this point. So in the next week, means after we will do the one video for the numerical, I will provide you the practice questions of the electricity. We would have the doubt session, हमारे पास अपने doubt session होंगे। So Sunday, Monday, Tuesday and on Wednesday, please on a serious note, on Wednesday we are going to have the test of the electricity, and if I gave you the date for that, so it has been 6, 7, 8, 9, 10. So on the 10th of June, please I am clearing you, on the 10th of June, on Wednesday, you are going to have your class test of the complete electricity. इसको कोई दो हिस्सों में नहीं बांटेंगे, तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइप सेम प्रोसीजर जो आप लोगों ने पुराना लिया था। तो स्टूडेंट दो जो नए हैं वो अपने डाउट अपने एग्जाम के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, विद मी। बट द स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट एग्जाम दिया था, दे नो पेपर कैसे होगा, हाउ यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर, हाउ यू हैव टू चेक इट, हाउ यू विल गेट द आंसर की, सब कुछ आपको अवेलेबल एज यूजुअल लाइक वैसे ही प्रोसीजर मिलेगा। सो स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जैसे ये वीडियो मिला अपना ये टॉपिक कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए। आज के इस लेक्चर के बाद आपके पास कंप्लीट 4 डेज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इन द आफ्टरनून हम लोग मीट करेंगे। सो टिल देन प्लीज एक वीडियो और आएगा विद द न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल बेसिस पे है। तब तक आप अपने थ्योरी, रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, एवरीथिंग को प्लीज डन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, प्लीज कंप्लीट दैट बेटा।